Hello, my dear friends. Hello, viewers. Welcome to my channel, Learning English with NK. So, everybody in these days want to speak in English, and he want to learn spoken English. For spoken English, if you really want to speak English, you have to learn some words. You should have some vocabulary. You should learn some small sentences first, so that whenever any situation comes in before you, you can speak out because you know those words. So I think it is must for everyone to learn small sentences in English before going for spoken English, because only then you will be able to speak when you will be knowing some words, some small sentences, some vocabulary, the way the sentences are spoken. So only after that, whenever you face such situations where these words are needed, you can speak English fluently and confidently. You will gain confidence when you know something. So today's my topic is daily use simple sentences. Only 12 sentences I am going to tell you. So please mug up all these sentences. इनको पढ़िए, you read, then again and again read these sentences and remember these sentences, so that you should have some vocabulary also with you. जितने इसमें देखिए words are coming in between: quiet, keep, calm, smoking, calm, soon, carefully, panic, shy, spit, laughing, connected. All these words add to your vocabulary. And how these are spoken for small sentences, you will learn when you will use it. So please read it, learn it, and practice these sentences daily. I want that you should learn 10 sentences daily, and you should practice these sentences. After that, you will be able to speak English fluently. We will be talking about spoken English in the next video also. How you can become a confident English speaker, how you can become a fluent English speaker. So I'll take all these subjects in the next video, but today just see daily use simple sentences. Only 12 sentences are there. बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत आराम से आप इनको पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, याद कर लेंगे. इनको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, and speak in front of the mirror, or when you are alone in the room, you can speak out these sentences. So let's start the video. फर्स्ट सेंटेंसेस. कई बार क्या होता है, हम किसी को कहते हैं कि कोई अपनी बात कह रहा है और वो थोड़ा शाई फील कर रहा है या हेजिटेशन हो रहा है. उसको हेजिटेशन मीन्स उसको थोड़ा सा झिझक लग रही है बोलने में, तो आप कहते हो खुल के बोलो भाई, साफ साफ बोलो ना क्या कहना है. बट व्हेन यू हैव टू से दिस इन इंग्लिश, हाउ विल यू से? खुल के बोलो. स्पीक फ्रैंकली. स्पीक फ्रैंकली. तो आपको समझ में आ गया कि खुल के बोलो. स्पीक फ्रैंकली. रिपीट आफ्टर मी. स्पीक फ्रैंकली. देन कम्स, कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आप क्या कहते हैं? हमेशा के जैसा. हमेशा के जैसा कहना है आपको, बट यू वॉन्ट टू से इन इंग्लिश. क्या कहेंगे? एज यूजुअल. एज यूजुअल. हमेशा के जैसा कहना है तो उसकी इंग्लिश है एज यूजुअल. देन कम्स, कई बार क्या होता है, किसी को आपको कहना होता है शांत रहो. कोई बहुत तेज बोल रहा है तो उसे कहते हो शांत रहो. अब हाउ यू विल से इन इंग्लिश? शांत रहो. कीप क्वाइट. कीप क्वाइट. कीप क्वाइट. और एक होता है शांत रहो, एक होता है शांत हो जाओ. कोई गुस्से में है, somebody is angry or in bad mood, तो उसे आप जब you are showing your sympathy towards him or her, you say शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. उसके लिए कहते हैं कीप काम. तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखिए. शांत रहो, दिस इज ऑर्डर, कीप क्वाइट. एंड किसी को व्हेन यू आर सिंपथाइजिंग समवन, यू से कीप काम, शांत हो जाओ. देन कम्स वेरी कॉमन सेंटेंस. किसी को सिगरेट पीना मना है. सिगरेट पीना मना है. क्या होता है? नो स्मोकिंग. नो स्मोकिंग. कहीं भी आप कोई आपके पास है सिगरेट पी रहा है, आपको उसे मना करना है, तो आप सोच रहे हैं कैसे कहूँ इंग्लिश में, तो आप क्या कहेंगे? नो स्मोकिंग. देन किसी को बुलाना है आपने अपने पास, जल्दी आओ.
जल्दी आओ, कुछ चीज़ दिखानी होती है ना, कई बार बड़ी ईगरनेस होती है, जल्दी आओ, तो क्या इंग्लिश में बोलेंगे? कम सून, कम सून, कम सून। देन एक, as I am speaking here, I am telling every one of you, I am asking every one of you, please listen carefully. ध्यान से सुनो। जब किसी को कहना होता है ध्यान से सुनो, तो हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। बच्चों को भी कोई बात आपने कहनी है तो कहिए लिसन केयरफुली, व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, व्हाट आई एम टेलिंग यू, लिसन इट केयरफुली। ध्यान से सुनो। आपको जब भी कहना है तो यू विल यूज लिसन केयरफुली। फिर क्या होता है? बच्चे डरते हैं या कोई और भी डरता है या किसी की बात करने के लिए डर लग रहा है, आप डरो नहीं, डरो नहीं किसी को कहना, तो आपको लगा कि भाई इंग्लिश बोलनी है मुझे, डरो नहीं को क्या कहना है? डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, डरना नहीं, डोंट पैनिक। फिर कोई शाई फील कर रहा है आपके सामने, तो आपने कहना भी शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, तो क्या कहेंगे आप? डोंट फील शाई, डोंट फील शाई। इंग्लिश में बोलेंगे डोंट फील शाई। लोग जगह जगह थूकते हैं, आप किसी को मना करना चाह रहे हैं, बट यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, क्या कहेंगे? डोंट स्पिट, थूको मत, डोंट स्पिट। याद हो गया? फिर उसके बाद क्या है, कई बिना बात के कोई हंस रहा है किसी बात पे, जबरदस्ती हंस के शोर मचा रहा है, तो आप कहें हंसना बंद करो, हंसना बंद करो कहना है आपको। हाउ विल यू से इन इंग्लिश? स्टॉप लाफिंग, स्टॉप लाफिंग। कोई सीरियस बात हो रही है और आप हंस रहे हैं, तो आपको मना करना है कि हंसिए मत, तो क्या कहेंगे आप? स्टॉप लाफिंग। फिर हमने एक छोड़ दिया था, स्टे कनेक्टेड। आप बताइए किसके लिए बोलेंगे स्टे? जब हम कहते हैं सब एक होकर रहिए, जुड़े रहिए, तो उसको हम कहेंगे स्टे कनेक्टेड। आपने सुना है ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ सुना है सब? यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो क्या होना चाहिए? स्टे कनेक्ट। और ये स्टे कनेक्टेड जो है, स्टे कनेक्टेड आजकल तो आपका इससे वाईफाई से कनेक्टेड रहिए, मोबाइल से कनेक्टेड रहिए, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आप स्टे कनेक्टेड। तो हमेशा किसी को भी कहना है कि आप अपना मोबाइल ऑन रखिएगा भाई, स्टे कनेक्टेड, है ना, तो जुड़े रहिए। तो these sentences are there, very simple sentences. Please go through all these sentences, learn it, remember it, revise it, and we will be talking about spoken English. Now I think I want to give a video every day for spoken English, but sometimes it is difficult, but I'll try my best. We will be talking about spoken English now. So if you have not subscribed my video yet, please subscribe it. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट एंड शेयर इट। भाई शॉर्ट वीडियोस बहुत देखते हो सब मेरा, लेकिन लॉन्ग वीडियो प्लीज़ देखना शुरू करिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। स्पोकन इंग्लिश वाले बच्चे तभी सीख पाएंगे जब वो डेली मेरा वीडियो देखेंगे, और लॉन्ग वीडियो को ज़रूर देखिए, वेरी इन्फॉर्मेटिव। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।